Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome dear students to lecture number 10th. Today we are going to start with this lecture, and this topic is about hedging strategies using future contracts. As we have already been talking about different strategies of speculation and arbitrage जो हम फाइनेंशियल डेरिवेटिव से कर सकते हैं। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि हम लोग बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते आए with the help of all these financial derivatives. अब होता ही है कि financial derivatives को आप use कर सकते हैं for the purpose of hedging. And what is hedging? Do you know? You must remember the definition of hedging by this point, क्योंकि this is very very important. Hedging क्या होता है? Just to refresh this thing on your minds. I know you know the definition. Hedging is basically to lock in yourself for a position, right? So basically it is how you can keep yourself safe against any unforeseen currency fluctuations which you want to avoid, या any unforeseen circumstances which you want to avoid. आप उसके लिए hedging strategies use करते हैं या उसके लिए आप hedge कर लेते हो. Speculation is where you are going to take the advantage of price difference, and arbitrage is where you are going to take the advantage of the difference in the market. So you are going to buy from one market and you are going to sell into the other. So the hedging strategies using future contracts is quite interesting, as we are going to hedge our position, or we are going to lock in ourselves for a particular position. Let me introduce this interesting concept to you about a little bit about this particular topic. Basically many of the participants in the future markets are hedgers. ज़्यादातर जो आपके future markets में participants हैं, they are hedgers. Instead of having the speculations or arbitrage, most of them they have the position of hedger. आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि hedging जो है that is basically being or कीपिंग योर सेल्फ सेफ, अपने आप को सेफ रखने का तरीका है या अपने आप को प्रोटेक्ट रखने का तरीका है. स्पेकुलेशन जो है वो है प्राइस के मूवमेंट से एडवांटेज लेने की जो बात है, दैट इज बेसिकली दी स्पेकुलेशन. सो बेसिकली देयर एम इज टू यूज फ्यूचर मार्केट्स टू रिड्यूस अ पर्टिकुलर रिस्क दैट दे फेस. सो पर्पज ये होगा that they are going to reduce risk by using the future contracts. This risk might relate to the price of oil, a foreign exchange rate, the level of stock markets, or some other variable. So you may keep yourself away from any unforeseen circumstances. Let's say ये foreign exchange rate भी हो सकता है, ये level of a stock market भी हो सकता है, or that can be certain other variable as well. Now we will talk about the perfect hedge. What is meant by a perfect hedge? Perfect hedge क्या होता है? Perfect hedge. Perfect hedge होता है a perfect hedge is one that completely eliminates the risk. Perfect hedge वो होता है जो कि आपका completely risk को eliminate कर दे. अब आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा hedge होता है? As we used to say कि there is nothing perfect in life. So there is in fact there are nothing like a perfect hedge which is available. So the perfect hedges are rare. Perfect hedge वो होगा जो कि आपके रिस्क को completely eliminate कर देगा, like 100% completely रिस्क को minimize करके zero पे ले आएगा. So can you think about a particular hedge which can reduce the risk to a zero level? No, there are nothing like a perfect. जैसे कि मैंने आपको बताया, हम ये भी कहते हैं ना जिंदगी में कुछ भी perfect नहीं है, तो फिर हमें hedge कैसा मिल गया जो कि perfect हो? Hedge भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा which is going to be a perfect. So the perfect hedge is one that completely eliminates the risk. So let me write it down for you. A perfect hedge is one that completely eliminates the
बाय डेफिनेशन परफेक्ट हैज वो हैज होगा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि व्हाट इज मेंट बाय परफेक्ट हैज, या अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मेंट बाय परफेक्ट हैज, तो आप ये कहेंगे कि परफेक्ट हैज वो होता है जो रिस्क को जीरो पे ले आए या रिस्क को 100% खत्म कर दे। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि देयर इज नो परफेक्ट हैज विच इज अवेलेबल, दे आर वेरी रेयर इन फैक्ट। अगर हम ये नहीं कहते कि होते ही नहीं है, लेकिन ये है कि दे आर वेरी रेयर और वेरी हार्ड टू फाइंड। सो द परफेक्ट hedges आर रेयर. For the most part, therefore, a study of hedging using future contract is the study of way in which hedges can be constructed so that they can perform as close to the perfect as possible. So we can find out the hedges which are as close to the perfect as possible. As close as possible का मतलब है कि maybe 90%, 95%, but doesn't seem like a hedge which is going to be 100%. So the perfect hedge is one which is one that completely eliminates the risk, right? So which completely eliminates the risk is called the perfect hedge. लेकिन साथ ही स्टूडेंट्स मैंने आपको ये भी बताया कि दे आर वेरी रेयर टू फाइंड, और हम ये कोशिश करेंगे कि हमें कोई ऐसा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए जिसकी हेजिंग से हम क्लोजेस्ट पॉसिबल या क्लोज टू द परफेक्ट हेज को हम आइडेंटिफाई कर सकें, राइट? So basically इस chapter में we are going to study number of different hedging strategies. We are going to study the long hedges, about the short hedges. We are going to study the importance of hedging from the point of view of shareholders, competitors, from the point of view of the general public, from the point of view of the users. हम उसके एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, प्लस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट दी हेज रेशियो क्या होती है। तो बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर आगे। तो हम देखेंगे कि वी आर गोइंग टू कंसिडर अ नंबर ऑफ जनरल इश्यूज एसोसिएटेड विद द वे द हेजेस आर सेट अप। व्हेन इज द फ्यूचर्स शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन पॉसिबल या अप्रोप्रिएट, एंड व्हेन इज द लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशंस आर अप्रोप्रिएट। किस वक्त आपको शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशंस लेनी चाहिए फॉर हेजिंग, and at what time the long futures positions are appropriate to take, and what is meant by the short futures positions and the long futures positions. We will be talking more about it जब थोड़ा सा आगे जाएंगे, लेकिन वैसे आपको just to refresh these concepts on your minds, what is the short futures, long position और short position के बारे में तो मैंने आपको बताया था। बिल्कुल वही चीज है। शॉर्ट फ्यूचर्स का मतलब है कि द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विच इज गोइंग टू बी सोल्ड, ठीक है ना, ऑब्लिगेशन जिसपे आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने का वादा करें, दैट इज कॉल्ड दी शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। एंड लॉन्ग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, आप गेस करेंगे? यस, वेरी गुड। लॉन्ग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसपे आप बाय करने का प्रॉमिस करोगे, राइट? सो शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज वेयर यू are going to have the obligation to sell a certain currency or something like that, maybe oil or any other underlying asset that you have promised for. And long future contract is where you have promised to buy. So long future contract is promised to buy. So प्लस ऑल्सो नॉट ओनली दिस कि आपने पोजीशन कौन सी लेनी है, लॉन्ग फ्यूचर पोजीशन लेनी है या शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन लेनी है, बल्कि हाउ मेनी शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स यू शुड हैव एंड हाउ मेनी लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स यू शुड हैव, लाइक कितनी पोजीशंस आपको लेनी है, इसके बारे में भी यू आर गोइंग टू हैव सर्टेन कैलकुलेशंस इन दिस चैप्टर, जिसमें आप हेज रेशो को कैलकुलेट करेंगे कि मिनिमम पॉसिबल हेज रेशो कितनी होनी चाहिए। एंड इवन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के हमें हेज करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कितना हेज करना चाहिए, दीज आर ऑल्सो द क्वेश्चन मार्क्स, और इनको भी हम रिजॉल्व करेंगे इन द सिमिलर टॉपिक दैट इज हेजिंग स्ट्रैटेजी यूजिंग द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। सो मेनी थिंग्स, थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, हेजिंग की डेफिनेशन बताई, फिर मैंने आपको ये बताया कि परफेक्ट हेज क्या होता है। परफेक्ट हेज मैंने आपको बताया कि दे आर वेरी रेयर बट दे आर basically eliminate the risk to a zero level, or they are going to 100% completely eliminate the risk. और मैंने साथ आपको भी बता दिया कि they are very very rare to find out. Then I talked about the future contracts and the long future contracts and the short future contracts, whereby I told you कि short future contracts में आप जो है वो सेल करने का obligation होता है, वेयर एज इन द लॉन्ग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ बाय करने का ऑब्लिगेशन होता है। ऑल्सो हाउ मेनी लॉन्ग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स एंड हाउ मेनी शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, दैट इज अनदर क्वेश्चन, ये भी रिजॉल्व हम करेंगे। एंड इवन कि हेजिंग करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एंड हाउ मच वी शुड हेज
कितने कॉन्ट्रैक्ट्स लें, कितनी शॉर्ट पोजीशंस लें, कितनी लॉन्ग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लें. These are all the decisions that we are going to make in this chapter. So basically we are going to at this stage we restrict our discussion to a phrase which says hedge and forget strategies. ठीक है ना, hedge and forget. तो आप इस लेवल पे जो सीख रहे हैं that is about hedge and forget strategies. ठीक हो गया. और थ्रू आउट दिस चैप्टर जो हमारी assumption है वो ये है कि we are going to ignore the daily settlement of the future contracts. अदरवाइज जो है वो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी. और इस चैप्टर में हमने ये assume कर लिया कि डेली सेटलमेंट से हमारा कोई लेना देना नहीं है. वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दी hedging strategies using the future contracts. So coming back, what is meant by a long and a short hedge? Before we start it, let me give you an example. When an individual or company chooses to use futures market to hedge a risk, the objective is usually to take a position that neutralizes the risk as far as possible. So जब भी कोई कंपनी जो है वो hedge करने के बारे में सोचती है तो they are going to take a position, वो ऐसी पोजीशन लेंगे that neutralizes the risk as far as possible. वो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे रिस्क को as far as possible, जितना के मुमकिन हो सके. ठीक है. Consider a company that knows it will gain $10,000 for each 1 cent increase in the price of a commodity over the next 3 months and lose 10,000 for each 1 cent decrease in the price during the same period. Suppose एक कंपनी है कि वो ये उसका ये ख्याल है या उसकी एस्टिमेशन है या उनको ये पता है कि it is going to gain $10,000 for each 1 cent increase. हर सेंट के इंक्रीज पे they are going to have an increase of $10,000 and in the next 3 months. Or similarly 1 cent के decrease होने से they are going to lose $10,000 in the next 3 months. To hedge, the company's treasurer should take a short future position that is designed to offset this risk. अब इस कंपनी के ट्रेजरर को ये चाहिए कि वो किसी शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन में एंटर हो जाए. एंड व्हाट इज द शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन? दैट इज गोइंग टू द प्रॉमिस टू सेल आउट अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. The future positions should lead to a loss of 10,000 for each 1 cent increase in the price of the commodity over the 3 months and the gain for the 10,000 for each 1 cent decrease in the price during this period. So if the price of the commodity goes down, क्या होगा? The gain on the futures position offset the loss on the rest of the company's business. Similarly, if the price of the commodity goes up, the loss on the future position is offset by the gain in the rest of the company's business. So by hedging, you have kept yourself safe from the adverse movement. Like आप अगर जब unsure हो ना कि 10,000 के ऊपर हर सेंट के ऊपर इंक्रीज से आपको प्रॉफिट हो सकता है और डिक्रीज से आपको लॉस हो सकता है, तो यू कैन इजीली लॉक इन योरसेल्फ इनटू द हेजिंग पोजीशंस. So what is a short hedge and what is a long hedge? Let me tell you. A short hedge. Short hedge future contract is appropriate when you know that you will sell an asset in the future and want to lock in the price. Suppose, for example, a short hedge is a hedge such as just I described you. It involves a short position in the future contract. Short hedge का मतलब ये है कि we are going to have a contract कि हम किसी एक specified currency को sell करेंगे. A short hedge is appropriate when the hedger already owns an asset and expects to sell it at some point in future. ये उस वक्त पॉसिबल है जब आपके पास कोई एसेट पहले से मौजूद है. शॉर्ट का मतलब है सेल. तो शॉर्ट हेज या सेलिंग पोजीशन आप उसी वक्त ले सकते हैं जब आपके पास ऑलरेडी कोई एसेट मौजूद है एंड यू वांट टू सेल इट इन सम नियर फ्यूचर, राइट? सो द शॉर्ट हेज इज अप्रोप्रिएट व्हेन द हेजर ऑलरेडी ओन्स एन एसेट एंड एक्सपेक्ट्स टू सेल इट एट सम टाइम्स इन द फ्यूचर. आपके पास पहले से ही कोई एसेट है एंड यू वांट टू सेल इट in the future. For example, a short hedge could be used by a farmer who owns some hogs and knows that they will be ready for sale at the local market in 2 months. तो for example किसी उसके पास फार्मर है, उसके पास कुछ हॉग्स हैं या कुछ कैटल है which he thinks कि ये 2 months के बाद या 3 months के बाद इतने ओल्ड हो जाएंगे कि they are ready to be sold.
तो उस तरह की सिचुएशन में जो फार्मर है वो शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है. लाइक दे may get themselves involved into a promise that they are going to sell this particular contract for a after some time period, let's say 3 months या 4 months. जैसे आप ये समझ लें, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए आप ये समझें कि आपके ऑरेंजेस के जो बाग हैं वो रेडी हैं, ठीक है ना. रेडी इससे मतलब ये है कि आप जो फ्रूट्स हैं वो आ चुके हैं और उनके पकने के लिए लेट्स से जस्ट 1 month मोर रिक्वायर्ड है. एंड यू नो कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, 1 महीने के एंड के अंदर ये जो फ्रूट है ये सारा पक के तैयार हो जाएगा. सो यू आर रेडी टू सेल. आपको पता है कि आपने ये चीज सेल करनी है. इस मौके के ऊपर आपके लिए शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना बहुत फीजिबल रहेगा, बिकॉज यू ऑलरेडी नो यू ओन अ एसेट दैट यू वांट टू सेल आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड. और आपको टाइम पीरियड भी पता है. आपको पता है कि 20-25-30 दिनों के अंदर ये जो फ्रूट है ये पक जाएगा और मैं उसको सेल आउट कर सकता हूँ, राइट. सो a short hedge can also be used when the asset is not owned right now but it will be owned at some future time. अब जरूरी भी नहीं कि वो एसेट आपके पास अभी हो सकता है कि आपके पास वो 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आ जाए. आपको पता है कि 2 या 3 महीने के बाद मेरे पास कोई एसेट इस तरह का आ जाएगा जिसके लिए आप हेजिंग करना चाहते हैं फॉर सम फ्यूचर टाइम पीरियड, राइट. तो फ्यूचर टाइम पीरियड का मतलब है कि हो सकता है 1 महीने के बाद आपका यह ख्याल है कि आपके पास ये एसेट आ जाएगा which you want to sell in some future time. Consider, for example, a US exporter who knows that he or she will receive euros in 3 months. कोई एक्सपोर्टर है, उसको पता है कि अगले 3 महीने के दौरान उसके पास कुछ यूरोज आ जाएंगे. The exporter will realize again if the euro increases in the value relative to the US dollar and will sustain a loss if the euro decreases in the value relative to the US dollar. अच्छा, एक्सपोर्टर जो है वो they will realize again अगर यूरो इंक्रीज हो जाए इन वैल्यू इन रिलेशन टू द यूएस डॉलर. सिमिलरली दे विल सस्टेन अ लॉस if the euro decreases the value relative to the US dollar. like US dollar और यूरो की करेंसी के साथ का जो फ्लक्चुएटिंग पैटर्न है उससे इंक्रीज में उसको गेन हो रहा है और डिक्रीज में उसको लॉस हो रहा है. तो इस तरह के केस में भी उसके लिए अपने आपको लॉक इन कराना बहुत बेहतर है. सो इन दिस सिचुएशन अ शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट विल बी वेरी मच फीजिबल. सो अ शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लीड्स टू अ लॉस if the euro increases in value and again if it decreases in value. It has the effect of offsetting the exporter's risk. इस तरह से एक्सपोर्टर का रिस्क कम हो जाएगा क्योंकि उसने ऑलरेडी ही अपने आप को लॉक इन कर लिया है किसी प्राइस के लिए. ओके, सो दिस इज अबाउट दी शॉर्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. मैं रिपीट करती हूँ कि मैंने क्या कहा अभी तक. अ शॉर्ट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज अप्रोप्रिएट व्हेन यू नो दैट यू विल सेल एन एसेट in the future and you want to lock in the price. आपको पता है कि आप for some future time period आप किसी एसेट को सेल करना चाहते हैं and you want to lock in the price just for now. और आप अभी उसकी प्राइस को लॉक करना चाहते हैं. Then is the long hedges. Long hedges. अच्छा जी, स्लाइड में पहले लॉन्ग लिखा हुआ है और बाद में शॉर्ट, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन पहले शॉर्ट कर दिया और अब मैं आपको लॉन्ग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सप्लेन करूंगी. So what is the long hedges or the long future hedges? They are appropriate. ये उसका रिवर्स होगा. When you know that you will purchase an asset in the future and you want to lock in the price. You do not have the asset right now, but you know that you will purchase this asset in the future and you want to lock in the price. लेकिन आपको पता है कि for some future time period you are going to buy that particular asset. So for that particular asset you may lock in your price right now, right? So hedges that involve taking a long position in the future contract are known as the long hedges. So hedges that involve taking a long position in the future contract are known as long hedges. तो जिन future contracts में आप buy करने का obligation ले लेते हो उनको हम कहते हैं long hedges, right? So hedges that involve taking a long position in the future contract, they are known as the long hedges. A long hedge is appropriate when a company knows that it will have to purchase a certain asset in the future and want to lock in the price right now. जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, it is going to be appropriate जब किसी को पता हो कि that they are going to own that very asset in the upcoming period and they want to lock in the price. यानी आपको पता हो कि आज से 1 महीने के बाद आपने इतनी जो कैटल है वो खरीदनी है
या इतने आपने हॉक्स खरीदने हैं, या इतने आपके जो वीट है वो आपने परचेज करनी है, एंड यू वांट टू लॉक इन द प्राइस राइट नाउ। अगर आप अभी से लॉक इन करना चाहते हैं प्राइस को, तो यू मे एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट राइट नाउ। इस तरह आप अपने आप को लॉक इन कर लेंगे फॉर अ पोजीशन। ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सपोज दैट द प्राइस ऑफ अ कॉपर on 15, okay, let me write it down for you so that it becomes more clear. Values के साथ मैं आपको ये एग्जांपल दे रही हूँ। Suppose that आपके सामने लिखा होगा तो it will be very easy for you to get the understanding. Suppose that the price of because May is the delivery month for the future contract, 3 months का, this should be very close to the future price. The fabrication therefore gains approximately the fabricator therefore gains this is 1.20। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हुआ ये है कि ये आपका है कॉन्ट्रैक्ट 100,000 का, ठीक है ना, $100,000 का कॉपर का। सो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ पहले। सपोज इसका बैकग्राउंड क्या है। सपोज दैट इट इज नाउ जनवरी 15, अभी जनवरी 15 है। अभी इसको ना देखें जो मैंने आपके लिए लिखा है, पहले मेरी बात पहले आप सुन लें कि मैंने आपको एग्जांपल क्या देनी है। सपोज नाउ इट इज जनवरी 15, अभी जो है वो जनवरी 15 है। अ कॉपर फैब्रिकेटर नोज दैट इट विल रिक्वायर 100,000 pounds ऑफ कॉपर ऑन May 15 टू मीट अ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट। और किसी कॉपर फैब्रिकेटर को पता है कि दे नीड टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 100,000। ये लिखा है दैट इज दी जो साइज है कॉन्ट्रैक्ट का, 100,000 pounds of copper on May 15 to meet a certain contract. The spot price of our copper is 140 cents per pound. जो spot price है 140 cents per pound, and the future price for the May delivery is 120 cents. जो future price है that is going to be 120 cents, ठीक है ना। The fabricator can hedge its position by taking a long position in 4 May future contracts on the COMEX division of NIMEX and closing its position on May 15th. May 15th को अपनी position close करना चाहता है। Each contract is for the delivery of 25,000 pounds of copper. The strategy has the effect of locking in the price of required copper at the close to the 120 cents per pound. अब हुआ यही है कि सपोज दैट द प्राइस ऑफ द कॉपर ऑन May 15 प्रूव्स टू बी 120 cents per pound. अब इंस्टेड ऑफ हैविंग 120 cents
जो प्राइस जो कॉपर कॉन्ट्रैक्ट की थी वो चलेगी 125 सेंट्स, ये उसकी स्पॉट प्राइस थी 140 सेंट्स की, फ्यूचर प्राइस उसकी थी 120 सेंट्स जो एक्सपेक्ट की गई थी। लेकिन जब May 15th आया तो क्या हुआ कि इट वेंट अप टू 125 सेंट्स पर पाउंड, बिकॉज May इज द डिलीवरी मंथ फॉर द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, दिस शुड बी वेरी क्लोज टू द फ्यूचर प्राइस। द फैब्रिकेटर देयरफॉर गेन्स अप्रॉक्सीमेटली 100,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, 1.25 और फ्यूचर प्राइस उसकी थी 120, ठीक है ना। तो 1.25 में से लेस किया 1.20 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100,000 से, तो दैट इज गोइंग टू बी 15,000। सो 1.25 लेस 1.2 multiplied by 100,000, it is equal to 5,000. So the gain is approximately 5,000. ठीक है, अच्छा जी। So this is basically the gain that the copper fabricator is going to have on a contract of 100,000 जिसकी spot price 140 cents थी और जिसकी future price जो है वो 120 cents थी। लेकिन price of the copper May 15th को that proves to be 120 cents per pound. So since the May was the delivery month for the future contract और जो कि future price से बहुत करीब था, इसलिए फैब्रिकेटर को गेन हुआ फॉर अप्रोक्सीमेटली 5,000 का, क्योंकि 1.25 से हमने लेस किया 1.20 को और मल्टीप्लाई कर दिया हमने उसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के साइज से, तो वी गॉट 5,000। सो दिस इज अबाउट दी लॉन्ग हेजेस और व्हेन यू वांट टू एंटर इनटू दी बाइंग पोजीशन और दी हेजिंग। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन। Now students, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ हेजिंग। बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट द हेजिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ हेजिंग आर सो ऑब्वियस दैट दे आर हार्डली नीड टू बी स्टेटेड। हेजिंग के फायदे तो इतने ज्यादा हैं या उसके फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि दे जस्ट डू नॉट नीड टू बी स्टेटेड, they are already self-explanatory. But most companies are in the business of manufacturing or retailing or wholesaling or providing a service. They have no particular skills or expertise in predicting variables such as interest rate, exchange rates and commodity prices. अच्छा students, unfortunately हमारे different businesses में expertise नहीं होती for basically for predicting variables like जिनके ऊपर हम hedging करते हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट हो गया या एक्सचेंज रेट हो गया या कमोडिटी प्राइसेस होती हैं। इनको जज करने के लिए या इनकी वेरिएशंस को देखने के लिए या उनको मॉनिटर करने के लिए या उनको देख के डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं या हेजिंग कैसे की जाती है, देयर आर हार्डली वेरी स्किल्स विच आर बेसिकली अवेलेबल। तो हमने ये देखना होता है कि हमारे पास क्या बिजनेसेस के अंदर हमारे पास क्या ह्यूमन रिसोर्सेज में ऐसी स्किल्स भी डेवलप्ड हैं या ऐसे लोग हमारे पास मौजूद हैं जो हमें इसके बारे में कोई ओपिनियन दे सकें या राय दे सकें। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैंने आपको फ्रॉम द वेरी स्टार्ट फर्स्ट लेक्चर से मैं आपको ये बता रही हूँ कि डेरिवेटिव की जो मार्केट है दैट इज रिलेटिवली न्यू। आपने बहुत सारे फाइनेंस के कोर्सेज पढ़े हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस, एंड यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और डिफरेंट आप सुनते भी आए हैं। लेकिन ये एक वो वाहिद स्पेशलाइजेशन फील्ड है फाइनेंस की जिसके बारे में अभी बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड नॉलेज नहीं है लोगों में और लोग बहुत ज्यादा इसको जानते नहीं है। इवन फाइनेंस के भी लोग बहुत ज्यादा इसको विद इन द स्पेशलाइज्ड जो लोग हैं वो फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं, बट दे डू नॉट नो इट हाउ टू प्रिडिक्ट द वेरिएबल्स मोस्टली। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि बिजनेसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, रिटेलिंग में या इवन सर्विस इंडस्ट्री में भी दे हैव हार्डली एनी नॉलेज और a grip on this particular topic. So it makes sense for them to hedge the risk associated with these variables as they arise. तो जब तक आप वेरिएबल्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकेंगे या आपको नहीं पता होगा कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशंस क्या है या एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस क्या है या कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशन आपके बिजनेसेस को कैसे इफेक्ट कर सकती हैं, तो जब प्रिडिक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, पहले आप प्रिडिक्ट करेंगे उसको एंड देन हेजिंग कम्स लेटर. So it makes sense for them to hedge the risk associated with these variables as they arise. The companies can then focus on their main activities for which presumably they do have particular skills and
and expertise. By hedging, they avoid unpleasant surprises such as sharp rises in the price of a commodity. तो अगर hedging से वाकिफ हों और hedging के साथ आप predict कर सकें अपने variables को which may affect your business, तो you will be at success. तो you will avoid the unpleasant surprises in this way and you will be able to go on a smooth pace. तो इस तरह से आप बड़े ही स्मूथ तरीके से अपने आप को चला सकते हैं while you are doing a business. अच्छा स्टूडेंट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, बड़े इंटरेस्टिंग एविडेंसेस मैं आपको आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ हेजिंग एंड अगेंस्ट, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों बताने जा रही हूँ. और मैं आपको ये भी बताऊंगी, आप कहेंगे कि मतलब हेजिंग करना तो बेहतर ही है, लाइक जैसे इससे पहले भी मैं आपको एडवोकेट करती रही हूँ, लेकिन नॉट एवरीवेयर. जरूरी नहीं है कि आप हेजिंग हर जगह पे ही करें. कुछ जगहों पे आप हेजिंग के बगैर भी काम चला सकते हैं, कुछ जगहों पे आपको यू नीड टू एक्सप्लेन, कुछ जगहों के ऊपर आपको हेजिंग करना बहुत सूटेबल रहेगा या आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आप हेजिंग कर लें, और विदाउट हेजिंग जो है वो आप बहुत लॉस में रह जाओगे. सो आपको मैं डिफरेंट एस्पेक्ट से या डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स बताऊंगी. शेयर होल्डर का क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है, कंपेटिटर्स का क्या हो सकता है, एंड सिमिलर टाइप ऑफ अदर कंसिडरेशंस क्या हो सकती हैं व्हाइल वी आर गोइंग टू hedge ourselves or hedge our business. Okay जी, so companies should focus on the main business as they are in and take steps to minimize risk arising from the interest rates, exchange rates and other market variables. कंपनीज को फोकस करना चाहिए अपने मेन बिजनेस पे, लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग है, रिटेलिंग है, सर्विस इंडस्ट्री या कुछ भी, बट they should take steps to minimize risk arising from the interest rate, exchange rate and other market variables. क्योंकि ये जो market variables हैं इनसे रिलेटेड जो रिस्क्स हैं वो सारे ही बिजनेसेस को इक्वली इफेक्ट कर रहे होते हैं, राइट. सो ये चूंकि ये सारे ही बिजनेसेस को इक्वली इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपने ये जरूर देख लेना कि आपने इन वेरिएबल्स को कैसे प्रिडिक्ट करना है एंड देन हाउ टू एस्टैब्लिश सर्टेन स्ट्रेटजीज व्हिच में इफेक्ट योर हेजिंग. ओके, नाउ हेजिंग एंड शेयर होल्डर्स. Hedging and shareholders. Shareholders are usually well diversified and can make their own hedging decisions. One argument something put forward is that shareholders can, if they wish, do the hedging themselves. पहला तो जो argument है वो ये है, अब करना चाहिए shareholders के बारे में ये है कि shareholders को खुद भी पता है कि वो hedging कर सकते हैं and they can take the decisions. And who are the shareholders? Basically they are the owners of a company. ओनर को जितना इंटरेस्ट है, जैसे आप ये समझ लेना, ओनर का अपना बिजनेस है, ओनर का वो अपना घर है, ठीक है ना. जैसे हमें अपने घर की फिक्र होती है, उसी तरह शेयर होल्डर को अपने बिजनेस की फिक्र होती है, बिकॉज दे आर दी ओनर्स, उनको अपने बिजनेस की फिक्र होगी. सो पहला आर्ग्यूमेंट तो ये है कि अगर इफ दे विश टू दे आर गोइंग टू डू द हेजिंग इफ दे फाइंड इट दैट इज फिजिबल. दे डू नॉट नीड द कंपनी टू डू इट फॉर देम, क्योंकि उनको पता है कि ये उनके लिए फेवरेबल होगी, तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कंपनी उनके लिए करे. दे कैन डू इट फॉर देमसेल्व्स इफ दे नो हाउ टू हेज. अगर उनको आती है तो दे विल डू इट बाय देमसेल्फ. दिस आर्ग्यूमेंट इज हाउएवर ओपन टू क्वेश्चन. लेकिन ये आर्ग्यूमेंट इस पे क्वेश्चंस ये हैं कि इट assumes दैट शेयर होल्डर हैव इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिस्क्स फेस्ड बाय द कंपनी एज डज द कंपनीज मैनेजमेंट. बेसिकली हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ कंपनीज मैनेजमेंट है और एक तरफ शेयर होल्डर है. कंपनी की मैनेजमेंट कुछ और है और शेयर होल्डर्स कुछ और है. शेयर होल्डर्स आर बेसिकली द ओनर्स और कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कंपनी के लिए काम कर रही है. समझ आ रही है ना बात? कह रहे हैं आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा स्केच बना देती हूँ. बेसिकली दीज आर दी शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स कौन है? ओनर्स, ओनर्स ऑफ द कंपनी, जिनके पास ओनरशिप है, जिनके पास जो शेयर्स ऑफ स्टॉक्स हैं, जिनके पास ज्यादा शेयर्स ऑफ स्टॉक्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं. और ये आपकी आ गई कंपनीज मैनेजमेंट. एक साइड पे आपकी कंपनीज मैनेजमेंट है. ओके, शेयर होल्डर एक साइड पे एट वन हैंड एंड द कंपनीज मैनेजमेंट एट द अदर हैंड. They might have certain conflicts among themselves. Like shareholders का जो perspective है और the interest of shareholders, they might be different as compared to the company's management. क्योंकि company's management का मतलब यह है कि company management में होंगे managers. Managers को किसने hire किया होता है? Again shareholders ने, क्योंकि they are the owners.
कंपनीज मैनेजमेंट जो है या जो मैनेजर्स हैं वो शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करते हैं। आपने एजेंसी थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं रिफ्रेश करा देती हूँ। कंपनीज मैनेजर्स जो हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करते हैं। शेयर होल्डर्स के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करते हैं कि जो ओनर्स हैं उनके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करते हैं। ये ऐसी बात है जैसे आपके घर में आपने अपने घर में कुछ लोग मुलाजिम रखे हुए हैं, सर्वेंट्स हैं, और उन सर्वेंट्स के ऊपर आपने एक सुपरवाइजर की तरह का एक बंदा लगाया हुआ है जो मैनेजर है, ठीक है ना, जो मैनेजर उन सबको डील करता है, ठीक है ना, जो उन सब से, और वो आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करता है। आपके बेस्ट इंटरेस्ट में काम करने से मतलब ये है कि वो आपके फायदे के लिए या आप जो घर का इंटरेस्ट है, बेस्ट इंटरेस्ट है, उसके लिए काम करता है। सो इज द केस विद द मैनेजर। मैनेजर जो है वो काम लेता है एंड दे वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। दे वांट टू वो अपनी कंपनी को बूस्ट देने के लिए वो प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा करेंगे ताकि कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो ज्यादा हो, ठीक है ना। लेकिन मैनेजर जो है वो तो सिर्फ तनख्वाह लेता है, वो तो सैलरी लेता है। शेयर होल्डर जो है उसकी तो स्टॉक प्राइस जब इंक्रीज होगी शेयर प्राइस, तो दे आर गोइंग टू गेट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल गेन्स एंड डिविडेंड्स। लेकिन जो ओनर है, जो मैनेजर है, उसको तो सिर्फ सैलरी मिलेगी। समझ आ रही है ना। इन दोनों के दरम्यान में कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसको हम कहते हैं एजेंसी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। एजेंसी थ्योरी के नाम से ये चीज है जिसको हम कहते हैं बेसिकली दैट इज द एजेंसी प्रॉब्लम। अब शेयर होल्डर्स के पास हो सकता है वैसी एक्सपर्टीज हो कि वो हेज कर सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि शेयर होल्डर्स के पास ऐसी एक्सपर्टीज ना हो कि वो हेज कर सकें। तो अगर हम खाली शेयर होल्डर्स पे छोड़ देंगे, उनकी मर्जी है वो हेज करें या ना करें, तो अगेन द क्वेश्चन अराइजेस दैट वेदर दे डू हैव इनफ एक्सपर्टीज दैट दे कैन डू द हेजिंग और दे कैन नॉट। ओके, It assumes that shareholders have as much information about the risk faced by the company as does the company's management. तो क्या ऐसा है कि कंपनी की मैनेजमेंट से ज्यादा बेहतर इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स के पास है? अगर तो ऐसा है फिर तो कंपनीज मैनेजमेंट जो है वो ठीक काम कर रही है। शेयर होल्डर्स जो है वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर हो सकता है कि कंपनीज के जो मैनेजर्स हैं they have better information about the risks which are being faced by the company, whereas shareholders जो हैं उनको तो इतना पता नहीं होगा because they are just the owners और उनकी तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। हो सकता है कि कंपनी के मैनेजर को या कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो about the risks. In most instances, this is not the case. The argument also ignores commissions and other transaction costs. There are less expensive per dollar of hedging for larger transactions and than for smaller transaction. अच्छा, पर ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट है वो भी लार्जर ट्रांजैक्शंस के लिए कम होगी और स्मॉलर ट्रांजैक्शंस के लिए ज्यादा होगी। Hedging is therefore likely to be less expensive when carried out by a company than when it is carried out by the individual shareholders. तो एक आर्गुमेंट ये है कि अगर इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हेजिंग करेंगे तो उनको कॉस्टली पड़ेगी उनको, क्योंकि वो स्मॉल ट्रांजैक्शंस के साथ करेंगे। लेकिन अगर कंपनी एज अ होल मैनेजमेंट जो है वो अगर करेगी हेजिंग करेगी तो उनको लेस एक्सपेंसिव पड़ेगी, क्योंकि लार्ज ट्रांजैक्शंस के ऊपर कॉस्ट कम आएगी एज कम्पेयर टू दी स्मॉलर ट्रांजैक्शंस। ओके, सो हेजिंग इज देयरफॉर लाइकली टू बी लेस एक्सपेंसिव व्हेन कैरिड आउट बाय द कंपनी देन व्हेन इट इज कैरिड आउट बाय द इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स। तो जब जो शेयर होल्डर्स हैं वो करेंगे लाइक अपना जो हेजिंग करेंगे उनके लिए कम कॉस्ट होगी अगर वो उसको एज अ कंपनी करेंगे। लेकिन अगर वो इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स हेजिंग करेंगे तो उनको ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी। सो वन थिंग दैट द शेयर होल्डर कैन डू फार मोर इजीली इज दैट द कॉर्पोरेशन इज diversify risk. A shareholder with a well diversified portfolio may be immune to many of the risks faced by the corporation. अच्छा, जरूरी नहीं है वो हेजिंग करे, वो डाइवर्सिफिकेशन भी कर सकते हैं। तो एक जो आर्गुमेंट हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो कंपनी है उसके शेयर होल्डर्स वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज बना लें। एंड व्हाट इज अ वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो? वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से मतलब ये है कि आप अपनी बिजनेस के पोर्टफोलियो में डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, ताकि अगर एक का गेन है और दूसरे का लॉस है तो वो एक दूसरे को ऑफसेट कर दे। एंड आई एम श्योर यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन,
जिसमें आप ऐसी सिक्योरिटीज अपने पोर्टफोलियो में डालते हैं या अपने बिजनेस में डालते हैं जिनका नेगेटिव कोरिलेशन होता है. द सिक्योरिटीज विद द नेगेटिव कोरिलेशंस आर बेस्ट सूटेबल फॉर द परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन, एंड इवन जीरो डाइवर्सिफिकेशन के साथ या विद नो कोरिलेशन के साथ जो है ना आप अपनी सिक्योरिटीज को डाल सकते हैं. तो शेयर होल्डर्स जरूरी नहीं है कि वो हेजिंग ही करें, दे मे इवन गो फॉर दी डाइवर्सिफिकेशन. तो 2-3 आर्ग्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हेजिंग फॉर शेयर होल्डर्स, हेजिंग एंड शेयर होल्डर्स के बारे में. जो पहली बात तो ये मैंने आपको बताई कि हो सकता है कि कंपनीज मैनेजर्स दे आर बेटर अवेयर अबाउट द रिस्क्स विच आर फेस्ड बाय द कंपनी, और ये भी हो सकता है कि शेयर होल्डर्स को खुद से इतना ज्यादा पता ना हो कि हेजिंग किस तरह से करनी है या उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो इन दैट वेरी केस शेयर होल्डर्स मस्ट हैव दैट नॉलेज. इवन इफ द कंपनी, दूसरी बात जो मैंने आपसे शेयर की हुई थी कि इवन इफ द कंपनी डिसाइड्स दैट दे आर गोइंग टू हेज देमसेल्व्स, उसमें भी फिर एक और बात जो आ जाती है वो ये है कि अगर उन्होंने डिसाइड कर भी लिया है तो इंडिविजुअल जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा बिकॉज स्मॉल ट्रांजेक्शन करेंगे. लेकिन अगर ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं, अगर एक शेयर होल्डर करेगा तो वो लेट्स से 500,000 की कर रहा है, अपनी हेजिंग कर रहा है, लेकिन अगर 50 शेयर होल्डर्स हैं और हर एक के पास इतनी बड़ी अमाउंट है तो जस्ट इमेजिन वो कहाँ पहुंचती है. तो अगर 50 शेयर होल्डर्स मिला के कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की कॉस्ट बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू दी स्मॉलर ट्रांजैक्शंस. तो एक आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर वो सभी करें, लाइक बड़े लेवल पे करें, बड़ी ट्रांजैक्शंस के साथ करें, तो दे आर गोइंग टू गिव यू अ लो कॉस्ट. लेकिन अगर आप छोटी ट्रांजैक्शंस के साथ करें तो या एक शेयर होल्डर ऐसा करेगा तो फिर उसकी कॉस्ट ज्यादा आएगी. फिर प्लस एक जो और मैंने आपको बात बताई, जो लास्ट में मैंने आपको बात बताई वो ये थी कि इंस्टेड ऑफ हेजिंग ये भी पॉसिबल है कि शेयर होल्डर्स जो हैं वो डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चले जाएं. एंड व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन? के पुटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्टॉक्स इनटू योर पोर्टफोलियो सो दैट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ वन ऑफसेट the negative impact of the other. कैसे? जैसे मैंने आपको कहा कि सिक्योरिटीज विद द नेगेटिव कोरिलेशन they are expected to be put together in a portfolio, diversified portfolio. ऐसा होता है कि एक सिक्योरिटी के रिटर्न ऐसे अगर जा रहे हैं, दूसरी के अगर ऐसे जा रहे हैं, तो ये एक दूसरे को ऑफसेट कर सकती हैं. ठीक है ना? लाइक जब इसके ऊपर जा रहे हैं, इसके नीचे आ रहे हैं, जब इसके ऊपर जाने शुरू होंगे, इसके नीचे आ रहे हैं, तो आपका ये एक मिनिमम किस्म का एक स्टडी रिटर्न जो है वो हमेशा आपका अवेलेबल रहेगा. यानी ऑफसेट करने के बाद आप एक एवरेज रिटर्न के ऊपर हमेशा से रह सकते हो. सो दिस इज टाइम एंड दिस इज रिटर्न. तो अगर आप सिक्योरिटीज विद नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब यह है कि एक सिक्योरिटी का रिटर्न ऊपर जाएगा तो दूसरी का नीचे आएगा. सो द परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन, नेगेटिवली इफ यू पुट नेगेटिवली correlated securities together in a portfolio, it will help you to establish such kind of a portfolio which is going to have an average return over a period of time. So basically this is what the hedging and shareholders is. Okay, so next is hedging and competitors. पहला हमने आर्गुमेंट पढ़ लिया. नाउ हेजिंग एंड कंपेटिटर्स. अब आपके कंपेटिटर्स कौन है वो भी हमने देखना है. वो क्या है? अब आप ये देखें स्टूडेंट्स, हेजिंग एंड कंपेटिटर में से मतलब यह है कि जब आप हेजिंग करने जा रहे हो तो आप ये भी देखें कि आपका कंपेटिटर क्या कर रहा है. अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, कंपेटिटर अगर नहीं कर रहा तो क्या मैं भी ना करूं? यस, दैट इज क्वाइट पॉसिबल. हमने ये देखना इंडस्ट्री कैसी है. ठीक है ना? मैं आपको भी एग्जांपल्स भी देती हूँ और मैं आपको पढ़ के बताऊंगी कि बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं और मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह से पॉसिबल है. आपका कंपेटिटर कह रहा है आप भी करें, आपका कंपेटिटर कह रहा है आप भी ना करें. ये क्या बात हुई? आप कहेंगे ये क्या बात हुई? मैंने पढ़ लिया फाइनेंशियल डेरिवेटिव का कोर्स, बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, एंड दैट इज वेरी वेरी फीजिबल. व्हाट इज द पॉइंट फॉर नॉट एक्सरसाइजिंग इट? आप कहेंगे कि मैं क्यों ना करूं, बिकॉज दैट हैज गॉट सो मेनी बेनिफिट्स. हमने पढ़े हैं, हमारी टीचर ने हमें बताया. व्हाई नॉट? कंपेटिटर नहीं कर रहा तो आप भी ना करें. मैं ही आपको कह रही हूँ क्यों ना करें. ओके, अभी आपसे शेयर करती हूँ.
If hedging is not the norm in a certain industry, it may not make sense for one particular company to choose to be different from all others. Like just being a different. आप अपने आप को सिर्फ डिफरेंट बनाने के लिए ना करें. अगर hedging उस इंडस्ट्री का नॉर्म नहीं है या वहां पे रिवाज नहीं है उस चीज का, तो you should not be doing it. Why? आप कहेंगे हो सकता है कि उनको पता ही ना हो सकता है कि उस इंडस्ट्री के अंदर उस इंडस्ट्री की ये प्रैक्टिस ना हो और वहां के पार्टिसिपेंट्स को ये पता ही ना होगा इसके क्या फायदे हैं. दैट इज क्वाइट पॉसिबल. Competitive pressures within the industry may be such that the prices of the goods and services produced by the industry fluctuate to reflect raw material cost, interest rates, exchange rates and so on. Basically जो competitive आपकी pressures हैं in a particular industry, वही आपके demand and supply forces को सेट करके प्राइसेस सेट करेंगी एंड दे आर गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड इन द इंटरेस्ट रेट्स एंड इन द एक्सचेंज रेट्स एंड सो ऑन. उसी तरह उस इंडस्ट्री की रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती है या कम होती है एटसेट्रा. तो इंडस्ट्री के जो नॉर्म्स हैं वो किस तरह से स्टैब्लिश होते हैं. इंडस्ट्रीज के नॉर्म्स इस तरह से स्टैब्लिश होते हैं कि दे आर गोइंग टू हैव द कंपेटिटिव प्रेशर्स ऑन वन अनदर. कंपेटिटिव प्रेशर्स का मतलब यह है कि रॉ मटेरियल की सप्लाई ज्यादा है या रॉ मटेरियल की सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, उसमें प्राइसेस ऊपर चली जाएंगी उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर. राइट आपने भी तो वही फॉलो करना है. यू कैन नॉट बी आउट ऑफ दैट इंडस्ट्री. सो द कंपेटिटिव प्रेशर्स इन अ इंडस्ट्री, they are going to set up the demand and supply forces for doing the prices up or moving the prices down and helping to determine the interest rates, exchange rates and interest rates. So a company that doesn't hedge can expect its profit margin to be roughly constant. However, a company that does hedging can expect its profit margins to fluctuate. अच्छा, जो कंपनी अपने आप को hedge नहीं करेगी, they are not going to expect any fluctuations in their profit margins. लेकिन जो कंपनी hedge कर लेगी, वो अपने आप को sensitive कर लेगी with the changes in the interest rates or the exchange rate. तो why to put yourself into a problem or into trouble? आप जब प्राइस सेंसिटिव नहीं थे तो आप अपने आप को प्राइस सेंसिटिव क्यों बना ले. वाई टू डू इट. अगर वो इंडस्ट्री का नॉर्म नहीं है तो आप अपने आप को मुश्किल में ना डालें. कैसे? टू इलिस्ट्रेट दिस पॉइंट, कंसिडर टू मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरी. मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपसे शेयर करूंगी और आपको इस एग्जांपल के बाद समझ आ जाएगा कि ऐसा करना क्यों डेंजरस है. सो बेसिकली देयर इज अ dangers in hedging when competitors do not hedge. When competitors, तो स्टूडेंट्स अगर competitors ने hedging नहीं कर रहे और आप कर रहे हैं, there is a danger in doing it. Why? For example, ये एक गोल्ड के इंडस्ट्री की मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. दो कंपनीज हैं, एक का नाम है सेफ एंड श्योर और दूसरी का नाम है टेक चांस कंपनी. नाम भी इंटरेस्टिंग है ना. Take a chance. Effects on profits of सेफ एंड श्योर कंपनी. दो कंपनीज हमारे पास, एक का नाम है टेक अ चांस और दूसरे का नाम है सेफ एंड श्योर. अब होगा क्या? होगा ये कि टू मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, दोनों गोल्ड इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. एक का नाम है सेफ एंड श्योर, दूसरे का नाम है टेक अ चांस.
Safe and Sure Company and Take a Chance Company. We assume that most companies in the industry do not hedge against movements in the price of gold. That a Take a Chance Company is no exception. अब सारी जो कंपनीज हैं वो कोई भी उनमें से नहीं लेती, hedging नहीं करती और take a chance भी नहीं करती. However, Safe and Sure Company has decided to be different from its competitors. Safe and Sure Company ने ये decide किया कि क्यों ना मैं हेजिंग कर लूं, जस्ट बीइंग अ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द अदर. तो सिर्फ डिफरेंट होने के लिए उसने कहा कि हो सकता है उसने कहीं पढ़ लिया हो, उसके मैनेजर्स ने कहीं पढ़ लिया, उसके शेयर होल्डर्स ने कहीं पढ़ लिया, उन्होंने सोचा हुआ कि चलो ये अच्छी टेक्निक है, हम भी अप्लाई करें. However, Safe and Sure Company has decided to be different from its competitors and to use future contracts to hedge its purchase of gold over the next 18 months. तो उसने अपने लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज कर लिए फॉर द नेक्स्ट 18 मंथ्स. ठीक है ना. इफ द प्राइस ऑफ गोल्ड गोज अप, इकोनॉमिक प्रेशर्स विल टेंड टू लीड टू द कोरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द होलसेल प्राइस ऑफ द ज्वेलरी, सो दैट टेक अ चांस कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन इज अनअफेक्टेड. अच्छा, अगर तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी इकोनॉमिक प्रेशर्स की वजह से, तो टेक अ चांस कंपनी के प्रॉफिट्स भी ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि वो प्राइसेस डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ऊपर चली गई हैं, तो उसके प्रॉफिट्स भी साथ ही इंक्रीज हो गए. सो दैट टेक अ चांस कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन इज, इफ द प्राइस ऑफ गोल्ड गोज अप, द इकोनॉमिक प्रेशर विल टेंड टू लीड टू द कोरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन द होलसेल प्राइस ऑफ द ज्वेलरी, सो दैट द टेक अ चांस कंपनीज प्रॉफिट मार्जिन इज अनअफेक्टेड. लाइक जितना इफेक्ट होगा या जितना प्राइस में इंक्रीज आएगा उतना ही इंक्रीज प्रॉफिट मार्जिन में आ जाएगा. तो सो देयर इज नो डिफरेंस इन दी प्रॉफिट मार्जिन. आप ये समझ लें कि अगर 15% महंगाई हो गई और साथ ही आपकी 15% सैलरी भी इंक्रीज हो गई, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस लिहाज से कि इंक्रीज तो हुआ लेकिन साथ ही आपकी इनकम भी उतनी बढ़ गई, तो दैट वाज इक्वली कंपनसेटेड. लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ, बाय कंट्रास्ट सेफ एंड श्योर कंपनीज profit margin will increase after the effects of hedge have been taken into account. लेकिन अगर सेफ एंड श्योर कंपनी ने अपने लिए हेजिंग को अपनाया, हेजिंग करने से उसने अपने आप को सेंसिटिव कर लिया with the changes. If the prices of the gold goes down, the economic pressure will tend to lead to the corresponding decrease in the wholesale price of the jewelry. Again, take a chance company's profit margin is unaffected. जो take a chance company के profit margin है, they are going to be unaffected. However, safe and sure company's profit margins goes down. उसका जो safe and sure company का जो profit margin है वो नीचे चला जाएगा. In extreme conditions, safe and sure company's profit margin could become negative as the result of hedging carried out. और अगर यही situation extreme पे चली जाए तो safe and sure company को बहुत ज्यादा profit margin जो है वो negative में भी जा सकता है. So if the change in the gold prices is increases, suggest करेंगे सेफ एंड श्योर ने हेजिंग की हुई है. ठीक है ना, इन्होंने हेजिंग की हुई है, इन्होंने हेजिंग की हुई है, राइट, और इन्होंने हेजिंग नहीं की हुई, नो हेज. ठीक है ना, इन्होंने हेजिंग की हुई है, इन्होंने हेजिंग नहीं की हुई. लेट्स से देयर इज एन इंक्रीज इन द गोल्ड प्राइस, इफेक्ट ऑन द प्राइसेस ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी विल इंक्रीज. जब गोल्ड प्राइस इंक्रीज होगी तो ज्वेलरी की प्राइस भी इंक्रीज होगी. प्रॉफिट्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी प्राइस इंक्रीज हुई उतना ही गोल्ड प्राइस इंक्रीज हुई उतना ही ज्वेलरी की प्राइस इंक्रीज होगी. ठीक है ना, 50,000 तोला था, उसी का इफेक्ट आ जाएगा प्राइस के ऊपर, प्राइस ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर. सो प्रॉफिट मार्जिन में फर्क नहीं पड़ा. समझ आ रहा है ना, जो चीज कमोडिटी की प्राइस पे हुई वही आपकी ज्वेलरी की प्राइस के ऊपर रिफ्लेक्ट होगी. सो देयर वाज नो इफेक्ट on the profit of a take a chance. ठीक है ना. Similarly, पहले हम take a chance को पढ़ लेते हैं. So, if there was a decrease in the gold price, there was a decrease in the price of gold jewelry. जब गोल्ड की प्राइस नीचे आई, क्योंकि उसने हेजिंग नहीं की हुई, जब गोल्ड की प्राइस नीचे आई तो उसकी ज्वेलरी की प्राइस भी कम होगी. So there was a no difference on the profit margins. लेकिन जो सेफ एंड श्योर कंपनी है उसके साथ क्या हुआ, when there was an increase in the gold price, there was the effect on the gold price of the jewelry, and the effect on the price of the
इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द सेफ एंड श्योर कंपनी, इट वेंट ऑन इंक्रीज, ठीक है ना। जब वो डिक्रीज हुआ प्राइस, तो इफेक्ट ऑन द प्राइस ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी डिक्रीज, तो इफेक्ट जो प्रॉफिट्स में है वो भी डिक्रीज में आ गया, ठीक है ना। सो इसका फ्लक्चुएटिंग पैटर्न आ गया, कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि उसने हेजिंग की हुई है। समझ आ रही है बात? क्योंकि उसने हेजिंग की हुई है इसलिए उसका कभी इंक्रीज हो रहा है और कभी डिक्रीज हो रहा है। उसने अपने आप को खुद सेंसिटिव कर लिया है विद द चेंजेस इन दी प्राइसेस, तो उस वजह से उसका जो प्राइस सेंसिटिविटी की वजह से उसकी जो प्रॉफिट्स हैं वो चेंजेस इन द गोल्ड प्राइस इंक्रीज के साथ इंक्रीज हो रहे हैं और डिक्रीज के साथ डिक्रीज हो रहे हैं। जबकि जो टेक अ चांस कंपनी है उसकी प्राइसेस के ऊपर कोई इफेक्ट, या उसके जो प्रॉफिट्स हैं उसके ऊपर कोई इफेक्ट एज सच नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब यह है कि अगर तो इंडस्ट्री का नॉर्म नहीं है और प्राइसेस डिटरमिन होती हैं बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस एंड बिकॉज ऑफ ऑल दोज डिफरेंट थिंग्स जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो फिर हेजिंग में एंटर होने की आपको कोई जरूरत एज सच नहीं है। वाई? क्योंकि उसकी रीजन ये है कि उस तरह से तो आप अपने आप को खुद प्राइस सेंसिटिव ज्यादा बना लेंगे। So this example emphasizes the importance of looking at the big picture when hedging. All implications of the price changes on the company's profitability should be taken into account in the design of hedging strategy to protect against the price changes. So this is about the hedging and comparators. The next point is other considerations. इसके अलावा हमें और क्या कुछ सोचना है? It is important to realize that hedge using future contract can result in a decrease or an increase in the company's profits relatively to a position it would be with no hedging. In the example involving oil producers, suppose students के हम एक ऐसी एग्जांपल अभी आपको एक कोट करूंगी, मैं अभी आपको एक कोट करूंगी एग्जांपल जिसके अंदर एक ट्रेजरर और प्रेसिडेंट की आपस में, दैट इज अ डायलॉग बिटवीन अ ट्रेजरर एंड अ प्रेसिडेंट, दोनों आपस में बात करेंगे एंड यू विल लुक एट के क्या पर्सपेक्टिव है ट्रेजरर का और क्या पर्सपेक्टिव है प्रेसिडेंट का। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हेजिंग के बारे में आपकी टॉप मैनेजमेंट को भी पता हो कि व्हाट यू वांट टू डू। आपकी टॉप मैनेजमेंट जो है वो वेल अवेयर हो अबाउट ऑल द बेनिफिट्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हेजिंग, क्योंकि अगर उनको नहीं पता होगा तो वो आपको सारा जो प्रॉब्लम है या जो सारा उसका अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो उसको हो जाएगा जो डिसीजन लेने वाला है। unless and until you do not know कि what is the pros and cons of that particular strategy of that particular hedging strategy. So it is very very important कि आप टॉप मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस में लेके hedging strategies को इम्प्लीमेंट करें। विदाउट देम यू कैन नॉट डू। मैं